سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فوجی قیادت نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی سے متعلق بے بنیاد الزامات مسترد کر دیے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں اسٹریٹجک اثاثوں کے حفاظتی انتظامات پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ بتایا گیا کہ ایٹمی ہتھیاروں کی سیکیورٹی کا نظام انتہائی مضبوط اور عالمی معیار کے مطابق ہے۔ عسکری قیادت نے سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف اور بحالی کے کاموں پر بھی غور کیا۔ آپ کو بتائیں اہم بات ہو گئی، بالکل دو ٹوک بات ہو گئی۔ آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ سپہ سالار کی زیر صدارت 252ویں کور کمانڈر کانفرنس۔ عسکری قیادت نے ملک کی جوہری اثاثوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اسٹریٹجک اثاثوں کے سیکیورٹی انتظامات بھی اطمینان بخش قرار۔ فورم کو بتایا گیا کہ بطور ذمہ دار جوہری قوت پاکستان نے جوہری اثاثوں کی حفاظت کے لیے بہترین عالمی معیار کے مطابق تمام مطلوبہ اقدامات کر رکھے ہیں۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال اور پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء کو سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف اور بحالی کے لیے سول انتظامیہ کی مدد سے آگاہ کیا گیا۔ کور کمانڈرز نے سیلاب کے بعد سندھ اور بلوچستان کی صورتحال پر تفصیلی غور کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیلاب زدگان کے ریلیف کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو سراہا۔ فارمیشنز کی آپریشنل تیاریاں تسلی بخش قرار دیں۔ عسکری قیادت نے تمام چیلنجز اور خطرات کے خلاف ملک کی دفاع کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ بھی کیا۔ سفارتی محاذ پر اتحادی حکومت کی بڑی کامیابی، پاکستان کا احتجاج رنگ لے آیا۔ امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان واپس لینا پڑ گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے پریس بریفنگ میں کہا، ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار بالکل محفوظ ہیں۔ ہمیں پورا اعتماد ہے، پاکستان ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدن پٹیل کی پریس کانفرنس۔ ایک صحافی نے امریکی صدر کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کو پاکستان پر مکمل بھروسہ ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلق کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ویدن پٹیل نے کہا کہ ہماری مضبوط شراکت داری ہے اور پوری لگن سے اس پر کام جاری رکھیں گے۔ امریکی سفیر کی طلبی سے متعلق سوال پر انہوں نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 13 اکتوبر کو ایک تقریب میں پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ دنیا کی خطرناک ترین قوموں میں سے ایک پاکستان ہے جس کا جوہری پروگرام بے قاعدہ ہے۔ امریکی صدر کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر پاکستان نے شدید رد عمل دیا۔ امریکی سفیر کو دفتر خارجہ بھی طلب کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک کہتے ہیں عمران خان کی فورن فنڈنگ پاکستان کے خلاف سازشوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر نے پاکستانی نیوکلیئر تنصیبات سے متعلق جو باتیں کی وہ زبان دراصل عمران نیازی کی تھی۔ عمران خان نے امریکہ میں ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے جس کے مالک ڈیوڈ فینٹن کو بابا اینٹی نیوکلیئر پروگرام کہا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کو چیلنج ہے کہ ڈیوڈ فینٹن سے معاہدے کی تردید تو کریں۔ کوئی ویڈیو جو نیٹ فلکس کے نام سے منسوخ کر کے واٹس ایپ پہ چلائی جا رہی ہے، جس کا نیٹ فلکس نے لکھ پڑھ کے جواب دے دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو پی ایم ایل این کے خلاف ہے، پی ایم ایل این کی قیادت کے خلاف ہے، ملک کے خلاف ہے، وہ جس کے نام سے منسوخ کر کے چلائی جا رہی ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کچھ تعلق نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کس کا تعلق ہے؟ ڈیوڈ فینٹن جو ہے اس کو بابائے اینٹی نیوکلیئر پروگرام کہا جاتا ہے امریکہ میں۔ آج تک پی ٹی آئی نے نہیں کہا کہ ہم نے ڈیوڈ فینٹن کو امریکہ میں ہائر نہیں کیا، یعنی پاکستان کی جوہری توانائی کے خلاف جو پلان ہے، جو پروگرام ہے امریکہ میں، اس کا جو باپ ہے وہ ڈیوڈ فینٹن ہے۔ سیکرٹ فنڈنگ آپ کو نظر آتی ہے، یہ فنڈنگ جا کہاں رہی ہے؟ ملک ریاض صاحب کے پیسے ہوں، چاہے وہ عارف نقوی صاحب کے پیسے ہوں، چاہے وہ کسی کرکٹ کلب کے پیسے ہوں، یہ ہیں وہ سازشیں جن میں یہ پیسے ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر آ رہے ہیں یہاں پہ مارچ، یہ مارچ کس کے خلاف لے کر آ رہے ہیں؟ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم گیٹ نمبر 4 پہ چڑھیں گے، یہ اداروں کے خلاف، این آر او مانگ رہے ہیں اداروں سے۔ سیاست کو سیاست کے ڈبے میں رہنے دیں، سیاست کو ریاست کے ڈبے میں مت لے کر آئیں۔ امریکی صدر کے متنازع بیان پر بروقت رد عمل قومی یکجہتی کا ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہیں وزیر خارجہ کے ڈیمارش پر امریکی وضاحت سامنے آئی ہے، کاش سائفر والے معاملے پر بھی اس پھرتی کا مظاہرہ کیا جاتا۔
फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो है वो यूएस का जो एनवॉय है उनके पाकिस्तान में, उनको डिमाश किया, फौरन उनको बुलाया गया, डिमाश हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है और फिर अमेरिका की जानिब से इसके ऊपर माजरत की जाती है और एक क्लैरिफिकेशन दी जाती। काश कि ये जिस साइफर का जो ड्रामा करते हैं ये उस वक्त वो भी दिखा देते, क्योंकि साइफर को उन्होंने अपनी सियासत में तो इस्तेमाल किया, लेकिन साइफर पर जो रिएक्शन टाइम था वो बड़ा अफसोसनाक था, क्योंकि अब तो पता चल रहा है कि साइफर कोई 2 हफ्ते तो पास रखा हुआ था और जब जरूरत पड़ी तो लहराना शुरू कर दिया। इस बारे में तज्जियाकारों की राय भी आपको दिखाएं। उनका कहना है अमेरिकी सदर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हाथों में है। भारत और इसराइल की एटमी सलाहियतों पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? यूएस प्रेसिडेंट का बयान जो है वो एक गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान है और या उसके उनका जो माइंड है पाकिस्तान के खिलाफ उसकी गमाजी करता है। उनको इंडिया का एटमी प्रोग्राम नजर आता है, ना इजराइल का नजर आता है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब की ये स्टेटमेंट आई थी पाकिस्तान के एटमी हथियारों के बारे में, उसके बाद अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है उन लोगों ने भी ये इजहार किया कि पाकिस्तान के हथियार जो हैं वो महफूज है। इत्मीनान होना चाहिए कि हमारे एटमी असासे हों या दूसरे हथियारों अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने कहा है वही नहीं बल्कि पूरी कौम मेरा ख्याल ये कहेगी कि हमारे असासे बहुत महफूज हैं, और जिन लोगों की आंखों में खटकते हैं वो इसके ऊपर तनकीद करते रहे। अहम खबर दें आपको, लॉन्ग मार्च के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी, हुकूमती दरखास्त पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। 5 रुकनी लार्जर बेंच जुमेरात को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुजाहिर नकवी शामिल होंगे। 25 मई के लॉन्ग मार्च पर फैसला भी इसी बेंच ने दिया था। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वजारत दाखिला ने 12 अक्टूबर को दायर की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के 25 मई के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है इमरान खान मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है। लीग रहनुमा उस्मा बुखारी ने दावा किया कि इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। वो लॉन्ग मार्च के लिए ज़मानत चाहते हैं जो उन्हें मिलने वाली नहीं। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को मुल्क की सालमियत के लिए खतरा करार दे दिया। ट्वीट किया, फॉरेन फंडेड फितने ने मुल्क के खिलाफ 4 साल साजिश की, अब इदारों के पीछे पड़ा है। 4 साल फॉरेन फंडेड फितने का पांव अवाम की गर्दन पे रहा और जीना मुश्किल हो गया था। अवाम अब इस फॉरेन फंडेड साजिशी टोले से आजादी चाहते हैं। दूसरी तरफ नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने भी बड़ा दावा कर दिया। बोली पीटीआई का लॉन्ग मार्च नहीं होगा। लिख लीजिए कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये फिर पीछे देख रहा है। मुझे कोई गारंटी दे दे तो मैं निकल आऊं। गारंटी इसको मिलेगी नहीं और ये लॉन्ग मार्च कर नहीं सकता, क्योंकि अगर गारंटी के बगैर लॉन्ग मार्च करने आएगा तो ये जानता है कि हकीम राना सनाउल्लाह इसका करेंगे क्या। अज़मा बुखारी का कहना था कि इमरान खान गैर जमहूरी और आईन और कानून से मावरा लीडर है। चेयरमैन पीटीआई को मशवरा दिया कि जनरल इलेक्शन में तमाम हलकों से खुद ही इलेक्शन लड़ लें। लॉन्ग मार्च की कॉल देना गैर आईनी इक़दाम होगा। आइन में लॉन्ग मार्च के जरिए इलेक्शन कराने का जिक्र नहीं। मुआवने खुसूसी बराए दाखिला और एहतसाब इरफान कादिर की प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू, कहा इमरान खान असेंबली में जाएं और हुकूमत से मुज़ाकरात करें। अगर वो लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तो ये एक गैर आईनी इक़दाम होगा, क्योंकि आइन में बिल्कुल इसका कोई जिक्र नहीं है कि आप लॉन्ग मार्च करके इंतखाबात कराएं। ये असेंबली में जाएं, जो हुकूमत वक्त है उनके साथ मुज़ाकरात करें, और फिर अगर हुकूमत वक्त असेंबलियाँ तहलील करे तो ठीक है, अगर वो तहलील ना करे तो फिर असेंबलियों को मुद्दत जो है पूरी करने दें, और जब असेंबलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी तो फिर आइन में इलेक्शन होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट कैसे इनकी मावनत कर सकती है गैर आइनी इक़दाम में? सवाल ही नहीं पैदा होता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर ऐसा करेगी तो फिर
सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद भी आइन को इरफान कादिर आइन साहब, से पीटीआई इंसाफ ने करेगी। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। सिकंदर सुल्तान राजा पर जानिबदारी, बदनीयती और पीटीआई को निशाना बनाने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पीटीआई के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए थे, मगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मौजूदा स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने 11 इस्तीफ़े मंजूर किए तो नोटिफिकेशन जारी हो गए। ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि ममनुआ फंडिंग केस में सिर्फ पीटीआई के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी के नाम पर भी पीटीआई को टारगेट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 7 रोज में बल्दियाती हुकूमत का कानून बनाने की हिदायत कर दी। कानून ना बनने की सूरत में साबका कानून पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का इंदिया दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जल्दबाजी में मुसल्लत की गई तो इलेक्शन मशकूक हो जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुलकरनैन इकबाल। बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हुकूमत पर बरहम। कहा 10 माह से पंजाब में बल्दियाती हुकूमत नहीं, अब सूबाई हुकूमत से मजीद बात नहीं होगी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे। पंजाब असम्बली से 7 रोज में बल्दियाती हुकूमत का नया कानून मंजूर कराया जाए, नहीं तो पुराने कानून पर ही बल्दियाती इंतखाबात करा देंगे। चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने की बात की तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें आड़े हाथों लिया। बोले बल्दियाती इंतखाबात में तो पोलिंग स्टेशन भी ज्यादा होते हैं, अब हम ईवीएम के चक्कर में पड़ जाएं, जल्दबाजी में ईवीएम मुसल्लत करने से इलेक्शन मशकूक हो जाएगा। शौक में ईवीएम पर इलेक्शन करा के अनारकी नहीं फैला सकते। पंजाब हुकूमत तो चाहती है कि अनारकी फैले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि दुनिया में ईवीएम पर तहकीकात हुई हैं, सिर्फ 2 ममालिक ब्राज़ील और भारत ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राज़ीलियन नुमाइंदे ने कहा था कि 2023 का इलेक्शन ईवीएम पर कराना मौजज़ा होगा। अगर इलेक्शन खराब हुए तो कौन जिम्मेदारी लेगा। इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर ही जारी है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात तीसरी बार मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख के लिए जायजा इजलास 15 रोज बाद तलब कर लिया। NA 45 कुरम में मुलतवी किया गया ज़िमनी इलेक्शन 30 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया गया। पहले बारिशें, फिर सैलाब और अब सिक्योरिटी एहलकारों की अदम फराहमी कराची में मकामी हुकूमत की तश्कील के आड़े आ गई। इलेक्शन कमीशन ने शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात तीसरी मरतबा मुलतवी कर दिए। तावील ये पेश की कि सिंध हुकूमत से 16,786 सिक्योरिटी एहलकार नहीं मिल सके। सूबाई हुकूमत ने वफाक से रेंजर्स और फौज तलब करने का कहा था। जवाब मिला कि फौज और नीम फौजी दस्ते सिर्फ क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर दस्तयाब हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची में ज्यादातर पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास नौयत के हैं, जहां रेंजर्स और फौज के बगैर इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। वोटर्स के तहफ़्फ़ुज़ और इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का कहना है सिक्योरिटी एहलकारों की अदम दस्तयाबी के बायस इंतखाबात मुलतवी करने के सिवा कोई चारा नहीं था। 15 दिन बाद सिक्योरिटी इदारों से राय लेकर नई तारीख के ऐलान पर गौर होगा। कमीशन ने फैसला किया कि NA 45 कुरम में मुलतवी होने वाला ज़िमनी इंतखाब 30 अक्टूबर को होगा। सुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने को कराची और जमहूरियत दुश्मनी करार दे दिया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इलेक्शन के इल्तिवा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कराची दुश्मनी है, अवाम दुश्मनी है, जमहूरियत दुश्मनी है। ये इख्तियार आईने पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है। किसी भी इदारे को इलेक्शन के इनेकाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 4-5 दिन इलेक्शन में रह जाते हैं तो आप किसी भी सबब से आप सहूलतकार बन जाते हैं सिंध हुकूमत के, पीपल्स पार्टी के। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तीसरी मर्तबा आपने ये हरकत की है। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये भागेंगे, हम इनके पीछे पीछे जाएंगे इंशाल्लाह, इंतखाब कराएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त इस शहर कराची का कोई है? आप ये देखें सड़कें इसकी टूटी हुई हैं। अब इन सड़कों की पैचवर्किंग के नाम पर 15 अरब रुपए, 14 अरब रुपए का इन्होंने एक हिसाब बना लिया। इनकी हवस ही खत्म नहीं होती। इनके टैंकों से जो है वो डॉलर बरामद होते हैं, लेकिन ये फिर भी आवाम को लूटने का काम जारी रखते हैं। इन्हें फिर डुबोना है, इन्हें फिर गड्ढे बनाने हैं, इन्हें फिर बारिशों के अंदर हमें बर्बाद करना है। इसलिए ये बल्दियाती इंतखाब नहीं चाहते।
اب پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی پر بلدیاتی الیکشن سے فرار کا الزام لگا کر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسے میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے خواجہ اظہار الحسن نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو حقائق کے مطابق قرار دیا۔ بلدیاتی انتخابات کے التوا پر صوبائی حکومت اور اپوزیشن جماعتیں آمنے سامنے۔ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو التوا کا ذمہ دار قرار دیا۔ ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ توہین عدالت ہے، ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلنا چاہیے، الیکشن کمیشن کے خلاف، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف۔ وزیر اطلاعات نے اپوزیشن جماعتوں کے الزامات مسترد کر دیے۔ حالات کی صورتحال میں سندھ بھر سے پولیس کے اہلکار یہاں نہیں منگائے جا سکتے۔ کراچی میں گزارش کی تھی الیکشن کمیشن سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ہمیں اضافی اہلکار 15,000 اہلکار ہمیں فیڈرل گورنمنٹ پرووائڈ کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہر وقت الیکشن میں تیار تھی، تاریخی شکست دی ہے پی ٹی آئی کو۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ دانش مندانہ ہے، کیونکہ کل کو اگر امن و امان کا مسئلہ ہوتا اور خاص طور پہ یہ جو یو سی وارڈ اور گلی محلے کے الیکشن ہے اور جو موجودہ صورتحال ہے تو اس میں تو شاید امن و امان کی صورتحال کافی مخدوش ہوتی ہے۔ پی ایس پی رہنما ارشد وہرا نے اپنے حقوق کے لیے عوام سے گھروں سے باہر آنے کی اپیل بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں پیپلز پارٹی سے معاہدے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم رہنماؤں نے کہا ہمارے معاہدے میں حلقہ بندیاں اہم نکتہ ہیں، بغیر حلقہ بندیوں کے الیکشن میں جانا شہری سندھ سے ناانصافی ہے۔ وفد کا کہنا تھا کہ آپ اور مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی سے معاہدے کے ضامن تھے، اگر پیپلز پارٹی بات نہیں مان رہی تو ہمیں بتایا جائے۔ وزیر اعظم نے متحدہ رہنماؤں کو یقین دہانی کروائی کہ آپ اہم اتحادی ہیں، جو بھی معاہدے ہوئے وہ پورے کیے جائیں گے۔ بھارت کا ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان آنے سے انکار، پی سی بی کا سخت موقف، ایشین کرکٹ کونسل سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ، بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ 2023 میں بھی حصہ نہ لینے پر غور۔ اور ڈالر کی قیمت چند پیسے بڑھی ہے، مگر قیمت جلد اصل ویلیو پر آ جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، بولے آئی ایم ایف سے مذاکرات اچھے رہے۔ شاہزیب قتل کیس میں سپریم کورٹ نے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی، شاہ رخ جتوئی اور ساتھیوں کو 10 سال بعد رہائی مل گئی۔ سپریم کورٹ نے شاہزیب قتل کیس میں شاہ رخ جتوئی اور دیگر ساتھیوں کی عمر قید کے خلاف اپیل منظور کر لی، بریت کا حکم جاری۔ کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ شاہ رخ اور ساتھیوں کے وکیل لطیف کھوسا نے دلائل دیے کہ قتل کے واقعہ کو دہشت گردی کا رنگ دیا گیا، ان کے موکلین کا دہشت پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، فریقین کا پہلے ہی راضی نامہ ہو چکا۔ لطیف کھوسا نے کہا قتل کے وقت شاہ رخ کی عمر 18 سال تھی، اب اسے اصلاح کا موقع ملنا چاہیے۔ مجھے کوئی یہ کہنا کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ملوث تھا یا نہیں تھا، جو صلح ہو گئی، انصاف کا بول بالا ہوا ہے۔ شاہزیب کو ڈیفنس کراچی میں 25 دسمبر 2012 کو قتل کیا گیا۔ جون 2013 کو انسداد دہشت گردی عدالت سے شاہ رخ جتوئی اور نواب سراج تالپور کو سزائے موت اور دیگر 2 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ 13 مئی 2019 کو سندھ ہائی کورٹ نے سزا عمر قید میں بدل دی، جس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی تھی۔ وفاقی حکومت اس سلسلے میں کیا کرنے جا رہی ہے، ذوالقرنین اقبال سے جانتے ہیں۔ ذوالقرنین بتائیے کیا موقف اپنایا جائے گا وفاق کی طرف سے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیے وفاقی حکومت کی جانب سے نظر ثانی دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آج کے ملزمان کی بری کے اوپر۔ اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں کافی تشویش کا اظہار کیا گیا سپریم کورٹ کے آج کے حالیہ فیصلے کے اوپر، اور کہا گیا کہ اس معاملے کے اوپر وفاقی حکومت کو بھی سننا چاہیے تھا، کیونکہ جب جبران ناصر کی درخواست آئی تھی جس میں سپریم کورٹ نے دہشت گردی کی دفعات بحال کی تھی اس مقدمے میں، اس وقت بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان کا موقف سنا گیا تھا، تو اب بھی مناسب ہوتا کہ وفاقی حکومت کا اگر موقف سنا جاتا اور اس حوالے سے اٹارنی جنرل اپنا انپٹ بھی دیتے۔ تاہم فیصلہ یہ کیا گیا کہ نظر ثانی درخواست دائر کی جائے گی اور وفاقی حکومت کا اور اٹارنی جنرل آفس کا جو موقف ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا جائے۔ بہت شکریہ ذوالقرنین۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات اچھے رہے، ڈالر کی قیمت چند پیسے بڑھی ہے، جلد اصل ویلیو پر آ جائے گی۔
लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ से बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन हर बात पब्लिक करने की नहीं होती। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई हमारी, 58 मीटिंग्स थी इंक्लूडिंग IMF, वर्ल्ड बैंक और बायलैटरल्स। वो हमने 4 दिन में की और उसमें की जो मीटिंग्स थी वो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, उनके सीनियर मैनेजमेंट, IMF सीनियर मैनेजमेंट, MD और फिर बायलैटरल कई मुल्कों से मीटिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज वेल। डॉलर की रियल वैल्यू उससे कम है, इसलिए इसको अपने रियल वैल्यू पे आना पड़ेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात को सारे जानना चाह रहे हैं कि क्या आपकी मियां साहब के साथ नेक्स्ट शादी चीफ के हवाले से बातचीत? मेरी जो है वो नॉर्मल बिजनेस एज यूजुअल, हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं, जो कि सारी चीजें पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हदधर्मी बरकरार, पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह का कहना था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक जय शाह ने सालाना मीटिंग में बताया कि पाकिस्तान जाकर खेलने का फैसला भारतीय हुकूमत को करना होता है, जिस पर वो कोई तबसरा नहीं कर सकते। अलबत्ता फिलहाल भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। 2023 का एशिया कप किसी और मकाम पर भी कराया जा सकता है। याद दिला दें आपको, एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सख्त मौक़िफ़ भी सामने आ गया। PCB के इजलास में एशियन क्रिकेट काउंसिल से राहें अलग करने का फैसला कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर ख्वाजा से। जी कादिर ख्वाजा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पास मेज़बानी थी सितंबर 2023 में एशिया कप की। इस हवाले से जय शाह जो BCCI के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया है, जिसके अजराई का ये कहना है कि चेयरमैन PCB रमीज रजा का न्यूजीलैंड और इंग्लैंड बोर्ड से ज्यादा सख्त जवाब भारत को देने का फैसला किया गया और PCB का एशियन क्रिकेट काउंसिल से अलग होने का भी फैसला हुआ। जैसे जराया ने ये भी बताया कि जय शाह ACC के बगैर कुछ साख्ता तौर पर कैसे अकेला फैसला करते हैं। इजलास में गुफ्तगू हुई है और पाक भारत मैच से ACC को रेवेन्यू मिलता है। इजलास में ये भी गुफ्तगू हुई कि एशिया कप का 70 से 80% रेवेन्यू पाक भारत मैच से और ACC ये रेवेन्यू डेवलपमेंट पर खर्च करता है। अगर ACC को ये रेवेन्यू नहीं चाहिए तो PCB के लिए बेहतर है कि ACC से अलग हो जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के लिए फैसले के जवाब में ICC वर्ल्ड कप 2023 में भी नहीं खेलेगा, जिससे हुकूमत ने बोर्ड से पूछा तो PCB खेलने से मना कर देगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ें। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। ग्रीनलैंड पर तामीराती मंसूबे शुरू कर दिए। मुतनाज़े चहारबाग हाउसिंग प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के लग्जरी अपार्टमेंट्स की बुकिंग शुरू कर दी गई। फातिमा शिराजी की रिपोर्ट। खूबसूरत इमारत, लग्जरी अपार्टमेंट्स, लेकिन ये सब कुछ होगा कहाँ, किसी को मालूम तक नहीं। रूडा ने अपने मुजवजा मुताज़िर रिहायशी मंसूबे चहार बाग में अहाता आलमगीर के नाम से कसीरुल मंजिला टावर की तशहीरी मुहिम शुरू कर दी। दुकानें, दफातर और लग्जरी अपार्टमेंट्स की पुरफरेब तस्वीर से लोगों को सरमायाकारी के लिए राग़िब किया जा रहा है, मगर ये हवाई किला होगा कहाँ, इसके महले वकूफ का भी किसी को इल्म तक नहीं। रूडा अथॉरिटी इस इलाके में गरीब किसानों से चंद सौ रुपए फी मरला की इवज जमीन खरीद रही है, लेकिन जरा इस ख्याली मल्टी स्टोरी टावर के रेट्स तो मुलाहिजा कीजिए। सिंगल बेड के रिहायशी अपार्टमेंट की कीमत 1 करोड़ 90 लाख रुपए, 2 बेड्स वाले अपार्टमेंट की कीमत 3 करोड़ 90 लाख और 3 बेड का अपार्टमेंट मिलेगा 4 करोड़ 80 लाख रुपए में, जबकि बुकिंग के वक्त जमा कराई गई 5 से 10 हजार की रकम नाकाबिले वापसी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रूडा को तामीराती मंसूबे शुरू न करने के अहकामात दे रखे हैं और एक्वायर की गई जमीन पर सिर्फ माहौलियाती बेहतरी के लिए तैयार किए गए मंसूबों पर काम करने की हदायत की है, लेकिन रूडा की जानिब से चहार बाग के रिहायशी मंसूबे पर तेजी से काम आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वाज़ेह रहे कि रूडा प्रोजेक्ट 1 लाख एकड़ से जायद रकबे पर बनाए जाने का मंसूबा है, जिसमें से रूडा अथॉरिटी सिर्फ 7,000 एकड़ रकबे हासिल कर सकी है। रूडा अथॉरिटी के मंसूबों के लिए जमीन की दस्तयाबी अभी तक यकीनी नहीं। सरमायाकारों ने खदशा जाहिर किया है कि ख्याली मंसूबों के नाम पर बुकिंग की मद में अरबों रुपए इकट्ठे करने की कोशिश किसी बड़े मालियाती स्कैंडल का बाइस बन सकती है। फातिमा शिराजी, समा, लाहौर।
PTI दौर में ट्रांसमिशन लाइन के अरबों रुपए मालियत के ठेके में कवायद की धज्जियां उड़ाई गईं। पेपरा ने बेज़ाब्तगियों का भांडा फोड़ दिया। नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। साफ चली शफाफ चली PTI का एक और करप्शन कारनामा बेनकाब। तरबेला टू इस्लामाबाद टनल 5 ट्रांसमिशन लाइन के ठेके में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। NTDC हुक्काम ने लाडली कंपनी को दस्तावेजात में रद्दोबदल की इजाजत देकर 5 अरब का ठेका झोली में डाल दिया। समा को मौसूल दस्तावेजात के मुताबिक ठेका हासिल करने वाली कंपनी के पास मतलूबा तजुर्बा नहीं था। अरबों रुपए का ठेका हासिल करने के लिए मेसर्स नेट्राकोन ने NTDC हुक्काम की मिली भगत से रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया। NTDC ने जनवरी 2021 में 10 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया। जुलाई 2021 में मेसर्स नेट्राकोन को क्वालिफाई करार दे दिया गया, लेकिन पेपरा ने ठेके की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। बोली में दूसरे नंबर पर आने वाली कंपनी ने टेंडर को पेपरा में चैलेंज करके तहकीकात की इस्तदाद की। ठेका हासिल करने वाली कंपनी का नुमाइंदा समाअत के दौरान एक ही बार पेश हुआ। NTDC के मशकूक डील की वजह से अहम मंसूबे को मुकर्ररा वक्त तक मुकम्मल करना मुश्किल हो गया। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। और बुलेटिन के आखिर में लिए चलते हैं आपको लाहौर के तारीखी शालामार बाग, जहां सजा है रंगारंग फैशन शो। वहीं से रिपोर्ट कर रही है नवीन अली। लाहौर का शालामार बाग और बाग के अहाते में स्टार्स की कैट वॉक। खूबसूरत मॉडल्स ने अरूसी मलबूसात जेब तन करके फैशन शो को और हसीन बना दिया। देखने वाले डिजाइनर हुसैन रहार के मलबूसात और मॉडल्स की अदाओं में खोकर रह गए। अदाकारा माया अली ने बतौर शो स्टॉपर एंट्री दी। गुलकार अली जफर की अहलिया भी ब्राइडल जोड़ा पहने कैट वॉक करती दिखाई दी। शादी सीजन में डिजाइनर्स के पेश किए जाने वाले अरूसी मलबूसात ने शायकीन के दिल मोह लिए। कैमरामैन साद नवीद के साथ नवीन अली, समा, लाहौर।